या सो आप में से ऐसा कोई है जिन्होंने अब तक भरा ना हो उस फॉर्म को, जिसने who hasn't yet responded to the form? Let me open the Google form to show you guys. एक सेकेंड. Most of the responses which we have got so far is for React.js, Node.js, and Python. So I could see that almost 50% of you had actually put Python as the first choice, जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं. ठीक है, आप में से कोई एक बंदा है जिसने रिएक्ट चेस डाला था, और उसमें जब मैंने पूछा कि हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ इन दैट, तो उसने 2 डाला था आउट ऑफ 5. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. आई थिंक दैट वाज अभिषेक कौशल. इज इट यू बडी? No, sir. I have marked 4 out of 5. There was someone, I mean, there was someone who had that value. पूछा कि सबसे अच्छा आपको क्या आता है, तो रिएक्ट जेएस. एंड हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ, तो नंबर 2 दिया आपने अपने आप को. सीरियसली. So probably he might have a different approach of scaling, you know. ये भी हो सकता है. अच्छा हो. उसमें लेकिन क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि 1 मतलब लीस्ट एंड देन 5 इज द मोस्ट वेयर यू कैन गो. Manu, I'm having some trouble here. एक सेकेंड. ये शेयर करने में ना. 1 सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. Safari. Then go to show in Finder, and now open with Excel. Where is Excel? Microsoft Excel. Yes. ठीक है गाइस, लेट मी शो यू द स्क्रीन नाउ. तो आप सभी लोग को नजर आ रहा है स्क्रीन? भानु, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? Yes. Okay. Yeah. Guys, because all of us are going to be working in teams, ठीक है, तो it's going to be a group activity. इसलिए इसमें कुछ ऐसा confidential तो है नहीं कि हम ना दिखा पाएं. ठीक है, everyone is going to be having it. Because we are going to be forming WhatsApp groups as well. तो सब लोग के पास सबका नंबर होने वाला है, and then people should know कि कौन किस में अच्छा है. तो what I can see over here is that हमारे पास शुभ says that he is good in React.js. Pratham Agarwal says that he is. Manu, were you saying something? No. Okay, ठीक है. Pratham also says that he is good in React.js. उसके बाद React.js में हमारे पास प्रशांत कौशिक हैं. ठीक है, हाँ, प्रशांत कौशिक इज द वन. इन्होंने अपने आप को 2 नंबर दिया है. मतलब he says that he knows React.js सबसे अच्छा, और उसने 2 नंबर दिया है. Probably he is learning now. उसके बाद then we have another person, Abhishek Kaushal, who says that he is doing React.js. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, because whatever we are going to be designing right now, जिसके बारे में अभी हमारा मेन मीटिंग होगा, उसमें we'll have to have front end design and the back end design, right? And we'll see wherein we can fit these Python guys. So React.js वाले जो हैं, they can actually do the front end, जो हमें सामने दिखता है वो डिजाइन, and then Node.js वाले they can do the server related या फिर back end का जो भी कार्रवाई होगा, these people can actually take care of. I see a person over here, Umang Tiwari, who has put Node.js, and he rates himself 3.
Then we have another one again who rates himself 3, मतलब which is fair enough. तब तक आप सीख भी पाएंगे till the time front end वाले अपना काम कर रहे होंगे. ठीक है. Let's see if we have a match here. Python, and then again we have React.js. So a person who says Python here says React.js और उसमें अपने आप को 1 यानी कि बहुत ही least देता है. Let's see if someone has given himself or herself 5. कोई नहीं. There is one person who is very good in React.js. वो है शुभ. तो शुभ, I think you will have to lead the project here. ठीक है, जो आपका जो फ्रंट एंड डिजाइन होगा that you have to lead. Yeah, that works for me. Guys, अब I'm sorry for the जो कनेक्शन का जो लॉस है ना, that's because it's raining heavily over here. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है and for that reason यहाँ पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा परेशानी है. Let's see what exactly do we have to do. अभी आप लोगों के प्रोजेक्ट ग्रुप के लिए we have 2 tasks. Number 1 is the development of an HRMS system, human resource management software. ये human resource management software है, it's going to be very different from what we have seen in the market so far. वो इसलिए होगा क्योंकि this will be burdened with या laden with various features, जैसे facial detection. मुझे शायद कोई बता रहा था, आशीष probably said that उन्होंने facial detection वगैरह इन सब के ऊपर काम किया है initially in the last company he has been interning with, right आशीष? Yes sir. मैं चाहूंगा कि आप किसी तरीके से इसको इंटीग्रेट कर पाएं. सिमिलरली दूसरे बहुत सारे फीचर्स जो कि हम सोच सकते हैं कि इसका पार्ट होना चाहिए, दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द होल सिस्टम. तो इस तरीके से हमें इस चीज को डिजाइन करना है. व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड राइट नाउ टू एक्चुअली किक स्टार्ट अ प्रोजेक्ट? वो क्या होगा? अ वेरी गुड ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट इज टू बी डिजाइन्ड. This blueprint has to be in such a way broken down into individual user stories, UML diagrams, sequence diagrams, communication diagrams, flow charts. इस तरीके से वो टूटे होने चाहिए so that the developer जिसके सामने वो task आ रहा है should be able to understand exactly उसको क्या करना है and very easily should be able to code it. है ना? क्योंकि at last the person who is actually designing the thing has to work in such a way where he has to be told everything point to point to be that has to be completed. So that's how the whole scenario is to be there. For this everything needs to be broken down, put into a paper, documented. ये सब करेगा कौन? All these this again is a task, right? आपके पास एक क्लाइंट आता है. हम एक टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में किस तरीके से काम करते हैं? There is someone called as a client who is one of the major stakeholders. ठीक है, आपको पैसे इसलिए मिलते हैं because that client is going to be paying you all the money. वो क्लाइंट आके आपके सामने आके अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि, और वो क्लाइंट इज हाईली नॉन टेक्निकल, दैट क्लाइंट डजंट नो व्हाट टू डू, या फिर उसको कैसे प्रोग्राम करें. उसको शायद ये भी नहीं पता होता है कि वो जो प्रॉब्लम है विच ही इज आस्किंग यू टू रिजॉल्व वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा उसमें लगेगा. सामने द पर्सन हु एक्चुअली टॉक्स टू दैट पर्सन इज टू द क्लाइंट या टू द स्टेक होल्डर इज a business analyst or a product owner. जब हम scrum methodology follow करते हैं, when we go for agile, which is the contemporary way of doing things, which is the latest way of doing things, so who we have on the front end is a product owner or a business analyst. ठीक है, जो product owner होता है उसका काम, या फिर जो business analyst होता है उसका जो primary task होता है, that is actually to understand the requirement, to gather the requirement from the client. हर चीज को पेन डाउन, वो उसके पास एक नोटपैड होता है, he keeps on scribbling. सामने उससे पूछता है, अच्छा आप क्या बनाना चाहते हैं? ओके. आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना चाहते हैं? ओके, ठीक है सर. सो ही टेक्स इन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन ही विजुअलाइजेस कि वो सिस्टम कैसा बनेगा. यहाँ पर देखने की ये बात है कि द क्लाइंट कैन बी सच अ पर्सन हु मे बी टेक्निकली कंप्लीट टोटली इलिटरेट, मतलब उनको कुछ भी समझ में ना आए. ठीक है, इन दैट केस वो ऐसी चीज डिमांड कर सकते हैं जो कि बनाना भी पॉसिबल ना हो. लेकिन क्या आप उस केस में आप उसको अपने घर से बाहर भगा दोगे? विल यू सेंड हिम ऑफ कि नहीं सर हम तो ऐसा चीज बना ही नहीं सकते, सो हियर इज माय थिंग, सो यू डू वन थिंग, यू गो टू योर होम एंड रेस्ट नाइसली. दैट्स नॉट हाउ यू डील विद दैट पर्सन, राइट? व्हाट यू वुड से डू इज दैट यू विल स्टार्ट गाइडिंग दैट स्टेक होल्डर. आप बोलेंगे ठीक है सर, आई हैव अंडरस्टूड योर
requirements. Now here is what I can do for you. This is wherein I can help you. This is what how I'll be able to do. इतना पैसा आपका लगेगा and और इतने टाइम के अंदर ये चीजें मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. तो that's how the whole overall system will come up, right? Business analyst का काम क्या होता है? To basically understand what the client needs to get developed, ठीक है? To gather all the requirements, also to lead the client in such a way that the client actually demands what he should be demanding, ना ज्यादा ना कम, ठीक है? इससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस एनालिस्ट इज व्हाट. हमारे पास दो सेट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स होंगे जो कि बहुत मेजर होंगे. नंबर वन, अ लिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्रामर्स जो कि बैक एंड के ऊपर काम कर रहे होंगे, राइट? अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन Node.js, पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन React.js, person who is an expert in Python. These people will be sitting at the background. They'll be working on whatever requirements come to them, right? And there is going to be on the forefront someone who is known as a business analyst. वो क्या करेगा? He will take the users to he will take the requirements from the client, break it down into epics. जैसे for example, एक example से चलते हैं. आपके पास एक client आया, वो क्लाइंट आपको आके बोलता है कि मेरे को एक वेबसाइट बनाना है क्योंकि मैं अभी तक ऑफलाइन बेच रहा था और मैंने हाल ही में सुना है, आई हैव हर्ड फ्रॉम द मार्केट दैट अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस अच्छी बन जाए तो पीपल कैन स्टार्ट बाइंग फ्रॉम यू और आपका जो रीच है दैट कैन बिकम ग्लोबल. यानी इनिशियली few people used to come to you, now the whole world can order from the very shop you have in some gully in Lucknow. So that's what he will come to you like that. आप बोलेंगे exactly sir, digital का ये benefit है because you can be shown on a global platform wherein more people can have their reach to you, or else you can increase your reach while going on to that digital platform. So that's what you say. उसके बाद फिर आप बताएंगे ठीक है सर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट आपके पास इतना सारा माल है, दीज आर द थिंग्स, दीज आर योर प्राइमरी कमोडिटीज, हम इसको आपके डिस्प्ले कर सकते हैं, दिस इज व्हाट. अभी आप क्या करिए कि आप ऑफलाइन बेचते रहिए सो दैट हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो. मीनवाइल हम क्या करेंगे कि आपका एक प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाएंगे. आपकी वेबसाइट में मेंबरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए, आपकी वेबसाइट में लॉगिन, यूजर नेम, लॉगिन, ये सब चीजें होनी चाहिए सो दैट अ पर्सन का कॉन्फिडेंशियल डेटा, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट. खुलेआम दिखा नहीं सकते तो दैट कैन बी केप्ट. ये सब चीजें क्या कर रहा है? द बिजनेस एनालिस्ट इज एक्चुअली गाइडिंग द क्लाइंट बाय टेलिंग हिम अ स्टोरी कि किस तरीके से आपका जो टास्क है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव होगा. ड्यूरिंग द वेरी सेम थिंग ही विल आल्सो ट्राई टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटाइजिंग. तो वो क्या करेगा? वो बताएगा सर अगर वी स्टार्ट विथ वर्किंग ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज लॉगिन सिस्टम या यूजर लॉगिन वगैरह, so that will take like 3 to 4 days, yeah, probably a month, depending on the complexity of the problem, but nothing is going to get resolved. हम आपको बना के दे देंगे पर लॉगिन करके भी किसी को क्या मिलेगा? Nothing. इसलिए what we should go first, पहला चीज क्या होना चाहिए जिसके साथ हम जाएंगे? That should be what is called as आपका कैटलॉग पेज. हम इनिशियली ऐसे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे कि वी डोंट सेल ऑनलाइन बट वी ओनली डिस्प्ले. धीरे धीरे करके वी विल शो दैट वी सेल ऑनलाइन. उसके बाद हम दिखाएंगे यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम अस. उसके बाद हम दिखाएंगे कि यू कैन एक्चुअली नॉट ओनली मनी ऑर्डर बट आल्सो पुट योर क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन. तो धीरे धीरे इन स्टेप्स, स्मॉलर स्टेप्स ऑफ इंक्रीमेंट हम प्रोडक्ट को आगे अच्छा बढ़ाते जाएंगे. ऑल दिस एक्टिविटी इज डन बाय हु? अ बिजनेस एनालिस्ट. आमतौर पे अगर देखा जाए तो in the general trend, a person who has to become a business analyst for a big company or a product owner for a big company would require at least 10 to 12 years of experience doing what? Basically programming. So a person who has done lots and lots of projects is someone who qualifies to become a business analyst, because in that way what essentially happens is that he accumulates various ways, he accumulates experience which he can actually use to guide the team जो कि उसके अंडर काम कर रही है, and also to guide the client ताकि उसको सही चीज डिमांड करवा सके और उसको राइटली दे सके. That was all about a business analyst, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है. A person who takes in the requirement from the client, breaks it down into pieces which are easily understandable by your programmers and then hands it over to the programmers. उसके बाद वो चीजों को प्रायोरिटाइज करके एक बैकलॉग बनाता है, प्रोडक्ट बैकलॉग, जिसमें से वो उनको बारी बारी करके देता रहता है कि ओके दिस सेमेस्टर या फिर दिस मंथ या ड्यूरिंग दिस स्प्रिंट यू वर्क ऑन दिस, नेक्स्ट में हम ये काम करेंगे. ठीक है? दैट्स हाउ द होल सिस्टम ऑफ एजाइल वर्क्स.
अब इसमें प्रोग्रामर्स का क्या काम आता है? द प्रोग्रामर्स आर बेसिकली द वंस, प्रथम आई एम एक्चुअली म्यूटिंग यू बिकॉज आपका अनम्यूट था. द प्रोग्रामर्स आर बेसिकली वंस हु विल एक्चुअली हैव टू स्टिक ऑल द ईंट्स, यानी ईंट से ईंट जोड़ना और सीमेंट लगाने का जो बेसिक काम होगा वो कौन करेगा? प्रोग्रामर करेगा, राइट? बिजनेस एनालिस्ट बताएगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है. इनको बाथरूम बनाना था, बाथरूम यहाँ बनेगा, बाथरूम इतना बड़ा बनेगा, बाथरूम में इतनी ईंटें होनी चाहिए. ऑल दोस थिंग्स इज समथिंग व्हिच इज गोना बी डिसाइडेड बाय द बिजनेस एनालिस्ट इन डिस्कशंस विद द क्लाइंट. दैट इज हमारा सबसे मेजर स्टेक होल्डर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू यू, आप समझ जाएंगे, दिस गाय विल ब्रेक थिंग्स डाउन. वो बताएगा कि ईंट किस क्वालिटी का होना चाहिए, कितना सीमेंट, कितना मजबूत, कितना चौड़ा दीवार होना चाहिए. ऑल दोस थिंग्स आपको इस लैंग्वेज में डालकर देगा बिजनेस एनालिस्ट, सो दैट द प्रोग्रामर्स बेसिकली अंडरस्टैंड कि उसको कैसे डिकोड करें और उसके ऊपर बेसिकली कैसे काम करें. The business analyst would actually break down bigger things which are like epics. user login बनाना है तो वो बड़ा चीज हो सकता है. पासवर्ड दिखना है नहीं दिखना है, कैन बी वन थिंग. ठीक है, पासवर्ड सेव होने का फीचर होगा कि नहीं होगा, दैट कैन बी वन थिंग. लॉगिन फर्स्ट पेज पे होगा कि लास्ट पेज पे होगा, वो एक चीज. व्हेन यू क्लिक द सेव एंटर बटन, उसके बाद जो 3-4 सेकंड जो आपका स्क्रीन घूम रहा होगा तो उस दौरान आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि कोई इमेज देखेंगे या कोई वीडियो प्ले होगा, दैट इज वन थिंग. सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ पीसेस जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है. ऑल दीज थिंग्स अगेन नीड्स टू बी टेकन केयर बाय द बिजनेस एनालिस्ट. प्रोग्रामर, he gets what he has to design in bits using user stories. User stories क्या होते हैं? User stories का एक एग्जांपल देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल, if you want to build something, I want to build a house so that I can live in. ठीक है, I want to build a house for myself so that I can live in it. इस तरीके का एक स्टोरी हमें बताता है कि हमें बनाना क्या है एक हाउस, और क्यों बनाना है कि मैं रह पाऊं. क्यों बनाना है बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि जब आप घर बना देंगे तो आप टेस्ट कर पाएं कि आपका घर बनाने का काम कंप्लीट हो गया कि नहीं. और वो कैसे टेस्ट होगा? बाय अंडरस्टैंडिंग दैट आप उसमें रह पा रहे हैं कि नहीं. तो in order to actually go for definition of done in the future, you will have to have a second condition. और वो second condition क्या होगा? वो base requirement which comes along with the user story. ठीक है, तो that's how the whole thing works. So this business analyst will have to break down these things into smaller pieces, those pieces which can actually give you the definition of done when it's required in the last, and also to actually model the whole scenario in such a way that the programmers, for the programmers it's easy to understand. नहीं तो अगर मैं आपको इस वक्त, मेरे पास एक ऑप्शन था, I could have come directly to you and told you कि this is what I wanted you guys to design. आप लोग प्रोजेक्ट टीम में बढ़ जाइए, आधे लोग फ्रंट एंड का काम करिए, नोड रिएक्ट जेएस वाले ऊपर का बनाइए, और पीछे बैक एंड सर्वर और इन सब का जो भी इंटरेक्शन वगैरह है वो बैक एंड वाले नोड जेएस वाले बनाइए. ठीक है, स्टार्ट राइट नाउ. When I say that, you guys won't be able to understand कि बनाना का क्या है, शुरुआत कहाँ से करना है, बेसिकली सर देखना क्या चाहते हैं. सो ऑल दोस थिंग्स आपको कभी समझ में नहीं आएगा, एंड दैट्स द रीजन यू रिक्वायर दिस पर्सन. ठीक है, so essentially we will require to shortlist someone from you जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो. ठीक है, to understand the complexity of the problems, who is in greater sense to understand कि क्या चीज को पहले बनाना चाहिए, क्या चीज को बाद में बनाना चाहिए, who is very doubtful and who has lots and lots of questions कि सर आपने मेरे को ये बोला है, अब आप बताइए उसका कलर क्या होगा, सर कितना टाइम लगना चाहिए, सर what should the user see while this process is on. जो बंदा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के और लिमिटेड टाइम में बहुत सारे, लेकिन बहुत जरूरी बकवास क्वेश्चंस नहीं, बकवास क्वेश्चन से क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है. सो वेरी इफेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछ सके और पूछ के रिक्वायरमेंट को अच्छे से गैदर कर पाए. सो वी नीड समवन अमंग यू जो कि ऐसा काम कर पाए, बिकॉज आई विल बी द वन हु इज गोना बी प्लेइंग एज द स्टेक होल्डर. वो कौन सा? द क्लाइंट. सो आई हैव समथिंग जो कि आप लोग को बनाना है, एंड व्हाट इज दैट थिंग? दैट्स द HRMS का सॉफ्टवेयर. That's the easiest task which I have thought of right now, because हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बनाना था, बट उसमें बहुत मुश्किल पड़ेगा. The complexity is gonna increase as you go inside. ठीक है ना? So we will go module by module, but what I want from among you is कि कौन ऐसा बंदा है who can rate himself at least 9 out of 10 when it comes to being a business analyst. अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. I would like that person to actually come up right now who can actually rate 9. कोई ऐसा है who can rate himself 9 as a business analyst?
Guys, you can unmute yourself and then speak as well. Okay, Shikha says that she would say 8 probably. Is there anyone who can challenge this 8? But she says that she has never been a business analyst. Shikha, can you speak? Can you, Shikha, unmute yourself and speak? Banu, is there anyone speaking? Because मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Probably if I have some internet connection का issue, I don't know. कि मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा हूँ. Shikha, you are not audible. I guess there's some issue with your microphone. No, you're not audible, Shikha. Yes. Hello. Yes, Shikha, you're audible now. Yeah. So yeah, I was saying that I have been contributing to projects like being a second year student. I have contributed to some personal projects and made a web app on my own, like my personal web app for COVID-19 NGO website. So yeah, I know how can we go through the way, and also have been like contributing to some client projects. So yeah, I know how what consequences we face while building a website, like authentication while login and all. So yeah, I can give a try, but I won't be sure since I haven't like worked as a business analyst, and I don't probably know what's the role of a business analyst. Okay. Is there anyone else who can give himself or herself 7? I mean, or जिसके पास experience हो. Guys, tell me first, who is there anyone who has got an experience working as a business analyst, or who exactly knows what a business analyst does? उसका business analyst का day-to-day activity क्या होता है? या फिर someone who has a good understanding of agile way of doing things, Scrum, Kanban, anything? Like I have read articles on that. Like business analysts go through trends, reading articles. Morning routine is like that. Then they come up with an idea. Then they ask the client that this is our idea. Should we go for it? Or they continuously go back and through with the developing team and the client. So okay, how can he improve our project? Means in a bit manner like that, making end-to-end product. So how can they improve like much scale away? Means like that's all I know, sir. Exactly. That's again one of the tasks of a business analyst. So someone who is a business analyst and who has been associated with a company, just suppose he is directly linked to the CEO of a company or CTO of a company. So they do perform something called as gap analysis. Yeah, they keep on checking what is their present system to see if it can be improved. जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं बेसिकली द एक्चुअल कोर बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट को आजकल देखो थिंग्स हैव बीन चेंजिंग. पहले जो एक पहले जिसके कंधे पे एक नेशनल एम्ब्लेम होता था, दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज एन एसपी इनिशियली. अब क्या हो गया कि दैट हैज लॉस्ट इट्स पावर. अब क्या है, एक एम्ब्लेम और एक स्टार, ठीक है, that person becomes an SP and he is the one who actually takes care of the city SP. He takes care of the city. उसी तरीके से with the change in the technology, with various companies, बड़े छोटे level पे startups coming in, तो business analyst के role भी काफी change हो गए हैं. But again, that's one of the roles of a business analyst, yes. But Scrum में basically that person is known as a product owner, और उसका काम होता है to basically guide the स्टेक होल्डर जो कि क्लाइंट है, एंड देन टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. जो उसका रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का, वो अंडरस्टैंड करना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, उसको बेसिकली ब्रेक डाउन करना है इनटू यूजर स्टोरीज वगैरह, एंड देन टू प्रेजेंट द वेरी सेम यूजर स्टोरीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ यूएमएल डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है, जिसके थ्रू हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट्स वगैरह. इस तरीके से वो अपने प्रोग्रामर्स को समझाता है कि बेसिकली उनको बनाकर क्या देना है.
And then the business analyst is the only one who understands कि बन क्या रहा है. Other people do not have that understanding. जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट बन नहीं जाता, यानी एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, तब तक कई बार क्या होता है कि प्रोग्रामर्स को भी पता नहीं चल पाता कि व्हाट इज इट दैट दे आर वर्किंग ऑन, बिकॉज वो बहुत बिट्स एंड पीसेस में होता है. द बिजनेस एनालिस्ट और द प्रोडक्ट ओनर ब्रेक्स डाउन ऑल दोस थिंग्स इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स एंड देन गिव्स इट. आपको बहुत छोटा पार्ट मिलेगा बनाने का, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि दिस पार्ट कहाँ पर ये फिट होगा, वेयर एग्जैक्टली इज इट टू, वेयर एग्जैक्टली कैन बी फिट दिस इन, तो आपको समझ में नहीं आएगा. बट देन ओनली व्हेन द थिंग कंप्लीट थिंग यू नो comes together and he compiles the whole thing, तब समझ में आ रहा होता है. So the business analyst is the one who actually visualizes. Product owner basically क्या होता है, he is a mini entrepreneur. जो product owner होता है ना, वो क्या होता है, एक mini entrepreneur होता है, क्योंकि he is the one who basically decides on to क्या feature होने चाहिए उस product में, किस तरह का outlook होना चाहिए, कैसा feel होना चाहिए, what kind of customer experience should it be giving to its consumers. All those things कौन decide करता है? It's all decided by a product owner. तो जब आप प्रोडक्ट ओनर के जॉब के लिए जाएंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम का जो प्रोडक्ट ओनर था वो कौन है, अभी गूगल का सीईओ, ठीक है. तो ही इज द वन हु एक्चुअली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द आइडिया ऑफ क्रोम, ठीक है. ही इज द वन, उसने सोचा था कि दिस इज हाउ द क्रोम शुड बी, और उसने प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाया कि राइट नाउ ही इज द सीईओ ऑफ दैट कॉर्पोरेशन, ठीक है. सेम इज विद लिंक्डइन में भी जो प्रोडक्ट ओनर का ऐसे जॉब वगैरह आता है, बट देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट ओनर पर प्रोडक्ट. तो आप सोचो, आप ये जो Zoom यूज कर रहे हैं ना, तो देयर वुड बी वन प्रोडक्ट ओनर हु एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द होल सिनेरियो. उसके अंदर कई टीमें काम करती हैं. ही इज द वन हु बेसिकली गेट्स टू डिसाइड कि क्या फीचर होने चाहिए, क्या फीचर नहीं होने चाहिए, ठीक है, कैसा दिखना चाहिए, व्हाट शुड बी द आउटलुक, व्हाट शुड बी द फील. सो प्रोडक्ट ओनर वो वाला पोजीशन होता है. इट्स ही और शी इन हिमसेल्फ इज अ मिनी एंटरप्रेन्योर, ठीक है. ही इज द वन हु ओन्स द प्रोडक्ट, इसीलिए उसको कहते हैं प्रोडक्ट ओनर. Shubh, you have raised your hand. Yeah, so अगर rate करने की बात है तो I'll rate myself 6 because I know both front end and back end, and मेरे को back end में मतलब I have like 3.5 out of 5 experience because मैंने hackathons में भी build कर रखी websites that work that connect to each other using Axios and some other, so I know how to connect things, but I've never dealt with I've never worked as a business analyst for any other project, so that's why I have a little less confidence in this field, but because I know how the coding works, therefore I know how to connect with things. That's all right, Shubh. अच्छा, let me just put this question in a different way, ठीक है. आप में से ऐसे कोई हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ देखा और उनको ऐसे समझ में आता, अरे यार ये ऐसे नहीं, दिस शुड बी थोड़ा सा अलग होना चाहिए, अगर ये ऐसे होता तो ज्यादा बेटर रहता, अरे यार ये जो हमने हाथ में लेके रखा है दिस शुड बी समथिंग, मतलब किसी और तरीके का होता तो ज्यादा बेटर रहता, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए थे, अरे यार ये बहुत ज्यादा टाइम लगाता है यार, इसको थोड़ा सा. सो डू यू गाइस गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब यूज करते हैं तो? या फिर कोई ऐसा बंदा होगा जिसको हर जगह ही कमियां दिखाई दे रही होती होंगी कि ये बुरा है बिकॉज इसमें ये परेशानी है, इसको अगर मैं होता तो इसको ऐसे बनाता. इज देयर एनीवन ऑफ यू हु फील्स दैट वे? हो सकता है सभी करते हो, बट समवन हु इज लाइक रियली मैड अबाउट ऑल दीस थिंग्स, हु इज वेरी मेटिकुलस, मतलब उसको महसूस होता है कि यार हर चीज ही बुरी चीज बनी है. शुभ, आपका हाथ पहले से ही ऊपर है, आपने फिर से उठा दिया. yeah, so अगर आपने कभी YouTube वीडियोस देखी हैं एंड आपने कभी कोई गाना सुन रहे हो आप जो आपको बहुत पसंद है एंड उसका कोई अच्छा पार्ट चल रहा है और उसके बीच में अगर ऐड आ जाए, मतलब आप गाने के बाद ऐड डाल दो ना, या फिर आप गाने के पहले ऐड डाल दो, आपको मतलब ये क्यों डिजाइन करना था इतना गंदा है ये चीज ऐसे है कि आई नो उसका एक देयर इज अ सिग्निफिकेंस टू इट बट इट्स जस्ट बैड डिजाइन अकॉर्डिंग टू मी. नहीं, that's true. बेसिकली इसी तरीके से होता है कि अगर तो a person who is basically working as a product owner ना, अगर आप YouTube के प्रोडक्ट ओनर होंगे ना शुभ, तो आप बेसिकली इन्हीं चीजों का ख्याल रखेंगे. You would say that एक बंदे को दिया जाएगा कि where exactly can that person put the ad, लेकिन वो बिल्कुल कंटेंट के बीच में नहीं डाल सकता, या फिर वो उस जगह पे नहीं डाल सकता जहाँ पे ऑडियंस का मैक्सिमम रिटेंशन है. वहां क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि वहां पर सिर्फ उसके चैनल की हालत खराब नहीं हो रही, वहां YouTube के ऊपर ही धप्पा लग जा रहा है कि अगेन फाइनली दिस YouTube इज समथिंग व्हिच इज टर्निंग आउट टू बी नथिंग बट एन एड एजेंसी.
So a person who can think that way is the one who is basically a product owner. ठीक है, यानी कि बेसिकली वो क्या रहा है हर वक्त, मतलब वट एवर ही इज डूइंग, ठीक है, वो हर जगह कुछ ना कुछ गैप निकाल रहा है. एंड देन सिर्फ गैप नहीं निकाल रहा, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल. एक तो सिर्फ गैप निकालते हैं और पंचायत बुलाते हैं और पंचायत करके चले जाते हैं, और दूसरा हु कैन एक्चुअली थिंक ऑफ अ रेजोल्यूशन. वो ठीक है गवर्नमेंट के साथ परेशानी है, बट देन ओके लेट मी डू वन थिंग, लेट मी राइट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कि अब ऐसे करोगे तो अच्छा होगा. तो पीपल हु एक्चुअली राइट, ठीक है ना, आर द पीपल हु वुड बी प्रोडक्ट ओनर्स, नॉट द वंस जो कि हाँ मतलब 4-6 लोगों को पंचायत बिठाया और यहाँ वहाँ की बात कर ली, नॉट दैट. बट देन अ प्रोडक्ट ओनर हैज टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड बिकॉज यू सी ही ओन्स द प्रोडक्ट. व्हाट आई मीन बाय सेइंग इज दैट कि इन अ प्रोडक्ट कंपनी, सपोज यू आर अ सर्विसेज कंपनी, तो क्या होगा कि यू विल बी डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर अदर कंपनीज. कोई आदमी आया आपसे वेबसाइट बनाना चाहते हैं इन द एजाइल culture of doing things, you will be a product owner, which means that you are going to be a mini entrepreneur for the time being, for the time it's being developed by you, for the time you are overlooking that project, right? उसके बाद आपको उससे कोई लेना देना नहीं है. आप कुछ यहाँ वहाँ गड़बड़ी भी करते हो तो क्या होगा, एक क्लाइंट का वो होगा. लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जैसे कि क्रोम है, इफ गूगल का एक प्रोडक्ट है क्रोम और क्रोम में ही गड़बड़ी हो जाए तो पूरा का पूरा गूगल का ही रेप्यूटेशन खत्म हो जाता है. इसलिए a person who is basically working as a product owner has to be very disciplined, has to be very thoughtful, has to be very meticulous. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि उसके पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. Only in that, if that's true, only in that case he can do some justice to his position as a product owner, because he truly is a mini entrepreneur. He is not owning the company, but he is then owning the product जो कि उस कंपनी को रन कर रहा है. ठीक है, so that's how the whole thing is. तो हम क्या करेंगे, I would see like you guys, अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए आप में से कौन इंडिपेंडेंटली ये कहता है कि दैट पर्सन वांट्स टू बी, क्योंकि आप लोग को अभी तक समझ तो आ ही चुका है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोडक्ट ओनर, एंड देन बीइंग अ प्रोडक्ट ओनर इज गोना बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस, बिकॉज आप लोग प्रोग्रामर्स और ये जो क्लाइंट है दोनों के बीच में होंगे. यू विल बी टॉकिंग, you will be gathering requirements and you will get to learn many things जो कि हम आप लोग को भी सिखाएंगे. That is user stories बनाना, UML diagrams वगैरह बनाना, अपने इंफॉर्मेशन को अपने प्रोग्रामर्स तक कन्वे करना, बिकॉज एज अ प्रोग्रामर जो आप देखते हैं और जो आप बनाते हैं इट इज एक्चुअली कोडेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू सर्टेन पीसेस, राइट? तो एक्चुअल बड़े प्रोजेक्ट को छोटे पीसेस में बना देना एंड देन अरेंजिंग इट इन सच अ वे दैट द क्लाइंट गेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट. ठीक है ना, ऑल दोज स्किल्स यू गाइज विल गेट. ऐसे आपको बताता हूँ, फैक्ट फिगर ये है कि पीपल फ्रॉम IITs, पीपल फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज, when they start interning as a business analyst, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ I actually advertised a business analyst, ठीक है, उसके लिए हमें पैसे वैसे भी देने पड़ते हैं हर एडवर्टाइजमेंट के बहुत. तो मैंने एडवर्टाइज किया एंड द ओनली गाइज आई हैव बीन गेटिंग इज फ्रॉम IITs मोस्टली. आप अगर मेरे लिस्ट को देखेंगे तो IIT कानपुर, IIT कानपुर, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, ऑल ड्यूअल डिग्री हो गाइज एंड ऑल इस तरह से. तो दैट्स हाउ ये इस तरह का जमावड़ा आ रहा है, बिकॉज you know to actually jump start as a business analyst is a big thing. वरना आप प्रोग्रामर रहेंगे बहुत साल तक and then आप उसमें सीखेंगे and then you can only move on to, जिसको प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट कंपनीज में जाना है वो बिजनेस एनालिस्ट सोच सकता है. तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, if there is someone जो कि खुद को रिकमेंड करना चाहता है एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड दैट पर्सन थिंक्स दैट ही कैन डू जस्टिस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट, तो वो अभी मेरे को बताए. Sir, this is Sharanya. I just would like to tell that my coding skills aren't that great, and as per my communication and gathering the information and being vocal about my requirements and stuff, I think I would be pretty good at it. And probably if someone would also team up with me to be the same, I think I would do a pretty good job at being a business analyst. ओके ठीक है सारण्या, यू आर वन. ठीक है, मैं आपका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे. लेट्स सी, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन भी करवा देंगे. प्रथम says that he wants to be a BA. प्रथम, what makes you a BA? आप भी थोड़ा बता दीजिए. Yes sir, so I worked on some projects and मतलब ऐसे है कि मतलब मुझे किसी प्रोडक्ट में देख के लगता है कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए और कैसे बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं. All right,
और आपने इसको ब्रेक डाउन वगैरह करके एंड देन हैव यू एक्चुअली यूज दिस UML, यूजर स्टोरीज एंड ऑल दोस थिंग्स, आपने इन सब टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया है या फिर? UML नहीं यूज किया है, XML पे वर्क किया है थोड़ा। अच्छा, UML नहीं यूज किया, XML पे वर्क। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। भानु UML नहीं यूज किया, XML पे वर्क किया है मैंने। नाइस, ठीक है, कोई बात नहीं, आप XML तो आपको आता ही है, UML हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। Is there anyone else जो कि करना चाहता है? शुभ, आप या फिर कोई और? Because there's going to be a session right now. We will have a client और आप लोगों को रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है। I'll see कि कौन किस क्वालिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है and how exactly are you scribbling onto your notebook. आपने क्या इन्फॉर्मेशन नोट डाउन किया है and if you are able to guide a team by that. So ये इस तरीके से करते हैं। I'll also try. You'll do it as well, right? I'll do my best. Yeah. Okay, all right. कोई और है? फाइनल कॉल? I will also like to try to for the session. Okay. Shikha, I can try also. कौन? Sir Abhishek. Abhishek, yes. Abhishek, you want to be in as well, right? Yes, sir. Okay. और शिखा ने भी बोला है कि she has rated herself as 8, so she would also like to contribute. She is very enthusiastic, है ना? तो उसको भी वो भी करेगी। शिखा, you are not audible मेरे ख्याल से most of the time, या फिर आप कुछ शायद बोल नहीं रहे। No, I'm audible. I wasn't speaking. I mean, I wrote it in the chat box. Okay. Yeah, I'll be glad to give it a try. ठीक है। बानू, so guys, अभी हमारे पास we have a person here who has a very good knowledge of human resource management systems, ठीक है? तो आप लोग अपने नोटबुक्स और पेन वगैरह इस्तेमाल करके निकाल के रखें। You guys will have to take the requirements, ठीक है? This is so अभी हम ये क्यों कर रहे हैं आपको बता देता हूँ। Because in any software company आप जिंदगी में कभी जाएंगे या एनर्जी कंपनी में कहीं पर भी जाएंगे तो this is the kind of scenario जो आपको मिलेगा। Initially you will sit in front of with the client, ठीक है? अगर आपकी वो रीच होगी तो you'll be sitting with the client. क्लाइंट आपको बताएगा और आप उसको सवाल पूछेंगे कि सर आपको क्या बनाना है, तो क्लाइंट आपको देगा। फिर आप क्लाइंट को लीड करेंगे, सर आपको क्या क्या फीचर उसमें देखना है, तो वो क्लाइंट आपको बताएगा। क्लाइंट को क्या पता, कुछ ना पता हो कि उसको क्या चाहिए, बट देन यू अगेन गाइस विल हैव टू लीड हिम कि हम आपके लिए ये बना सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्लाइंट भाग जाए, यार ये क्या बेकार टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है? वो सब भी नहीं आना चाहिए। तो दिस इज हाउ द थिंग विल हैपन, ठीक है? I will present to you Bhanu. Bhanu has a good understanding of the HRMS software. ठीक है? He is the stakeholder, the external stakeholder, जो कि सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं हमसे, ठीक है? तो भानु इज अ क्लाइंट, वो मेरे पास आए। आई एम द हेड ऑफ द कंपनी। उन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरे को एक HRMS सॉफ्टवेयर बनाना है। मैंने भानु से बोला बिल्कुल, क्यों नहीं, लेट मी गेट यू इन टच विद वन ऑफ माय बिजनेस एनालिस्ट। आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट समझा दीजिए एंड ही विल टेल यू कि कितना टाइम में बन सकता है, क्या हो सकता है। He will take down all your points और उसके बाद probably in a week time या फिर probably in day or two depending on the complexity of the problem, he will let you know कि कैसे हो पाएगा। और finally हम आपको commercials भेज देंगे एक week के बाद, जैसे सब कुछ हमारे बीच में finalize हो जाएगा, right? So ये मेरे और भानु के बीच में बात हुई है। Now अभी मैं क्या कर रहा हूँ, all of you guys who are working as a business analyst here, you guys एक करके, ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं और सभी के सभी नोट डाउन करें कि जो भी ये होगा। Swakit, you do one thing. Allow me to speak for 5 minutes. मैं 5 मिनट में एक बार एक brief उनको बता देता हूँ what me और client क्या चाहते हैं and then they can ask me questions. और नहीं भानु, that's not gonna help because we need to see what kind of questions, the quality of questions which these guys are asking, ठीक है? आप anyways I'll give you a chance to actually give them an exact overview of what you wanted in the first place. लेकिन अभी के लिए for the time being these people will have to ask you questions and मैं चाहता हूँ कि जो आप बनवाना चाहते हैं ये बिल्कुल उसके नजदीक पहुँच जाए या फिर वो exactly वो चीज वो जान जाए कि क्या चाहिए और उसके specifications भी यहाँ तक ही नोट कर लें। So that's what I want, ठीक है guys? So you guys are you ready to go ahead with it? ठीक है, चलो करते हैं। Let's start now. आप एक एक करके सवाल पूछिए। मैं आप अपना हैंड रेज करिए, मैं आपको बोलूंगा और आप अपना सवाल डालें।
Yes, the first one, Shikha Singh. So for human resource management, what I think is how many dashboards would be required, like login for admin and a different login for user, right? Like to handle the HR interns and one for the HR admin. So what does the client expect? Like how many dashboards he expects for the same? So Shikha, first understand human resource, management system has around 8 to 12 modules. So modules like recruitment management, recruitment like performance management, Bhanu, let me like pay. So हर एक module का there could be multiple users. Let me give an example. जैसे ATS recruitment. Bhanu, So don't guide them, let them guide you. That's what I want. ना इस exercise में यही होना है. These people has to guide you. Shikha, ask a question which is very specific. ऐसे पूछो आप. Sir, what kind of module do you want? How many dashboards do you want to have? Do you want to have 6? आपके कितने user होने चाहिए? क्या वो क्या वो एडमिन होगा, क्या वो हमारे क्लाइंट्स होंगे, आप क्या बनवाना चाहते हैं बेसिकली, क्या एम्प्लॉयज के लिए भी लॉगिन होगा? आस्क हिम ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस और वो आप नोट डाउन करते जाइए. फिर क्लाइंट आपको बताएगा हाँ मैं चाहता हूँ, क्लाइंट इस तरह से जवाब देगा, हाँ मैं चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी एक पोर्टल हो जहाँ पे वो लॉगिन करके अपने अटेंडेंस को करेक्ट कर पाए. हाँ मैं चाहता हूँ कि अगर एम्प्लॉय को किसी को लीव पे जाना हो तो वो वहाँ से लीव को अप्लाई कर पाए इन द सेम HRMS सॉफ्टवेयर. क्लाइंट आपको इस तरह से रिप्लाई करेगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? आप समझ गए ना शिखा? That's how your question has to be. Yes, exactly. I should have an impression कि I'm talking to a business analyst, not to a layman person. इस तरह के क्वेश्चन. आप क्लाइंट को लीड Sure. कीजिए, पहले आप पूछिए क्या है और उसके बाद फिर आप जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी you start leading. शिखा आपको कुछ पूछना है अभी? I'll think and let you know. Okay, शिखा आप हैंड डाउन कर लीजिए. Meanwhile, anyone else? आप जल्दी guys. Yeah, so I would like to know if once the person registers or logs in the first time, what kind of information would you like to get from the person who's logging into the page or whatever? Like you mean to say which page? Because in my mind I am having around 100 pages in different modules. So मुझे नहीं मालूम किस page की आप बात कर रहे हैं. Before they create their profile, what kind of information, like probably their resume or CV or probably their education or skills? So probably the first thing I would like to see कि the job description, the job role, मैं कहाँ क्यों आया हूँ, why I am into this website or a page, like because I would be applying to a position. मतलब first thing would be an external person who would be visiting your page would be seeing कि भाई क्या position है, क्या काम करवा रहे हैं ये लोग, क्या दे रहे हैं. So that would be the first thing for an external person if you are speaking about for an external person, not the internal. Anyone else who wants to ask? जल्दी पूछिए And यार. sir, and Sure. sir, what would be the ओके शुभ, आप एक बार पहले क्लिक करिए, आपने रेज किया था और ऋषभ. हाँ फिर ऋषभ उसके बाद. Shubh, you are on mute. Sorry about that. हाँ, Yeah. I would like to ask कि आपकी जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें कितने टाइप्स के यूजर्स होंगे? कि एक तो हो सकता है कि जो मैनेज कर रहा है और एक हो सकता है जो गेस्ट है जो आया है देखने के लिए. तो ऐसे आप कितने टाइप के यूजर्स चाहते हो एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस डू यू वांट देम टू हैव? Right. So अभी जो मेरे दिमाग में है, I want to have 5 types of users. So as you know कि हम लोग HRMS सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, right? तो first user would be a HR. ठीक है? HR किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? Employees के लिए बना रहे हैं. तो second user would be the employees, right? And third would be the external peoples because HRMS has to deal with the external peoples also, जैसे recruitment candidates and all these people. तो external. Like a guest who's coming to the website for the first time, right? Right. Third user, right? And then the fourth user would be the peoples who are managing the employees because they would have a certain types of rights. Okay, to manage these employees because HR would not be the person who would be managing the entire organization, right? So fourth user ये है. And the final user could be the management who will have a final dashboard of everything, जो उनके सामने आ रहा होगा. Right? So there will be a hierarchy of control. Right, absolutely. Anyone else who wants to ask questions? Guys,
Rishabh, yes, Rishabh. Sir, actually, my question was similar one, that how many hierarchy level of login would you like into in your dashboard? So it is already answered. ऋषभ देखो ये this is वैसा वाला जमाना कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है बिल्कुल ही एक सवाल गया दूसरा तैयार कर दो सेकंडों के अंदर एज अ बिजनेस एनालिस्ट योर सवाल कैन नॉट गो यू हैव टू क्रिएट अनदर वन बिकॉज़ पूरा प्रोडक्ट है यार इतना बड़ा एचआरएमएस का प्रोडक्ट बनाने की Yes, बात sir. कर रहे हैं आप फिर हायरार्की Yes. पे चटके हो नहीं that's Yes, not sir. Hmm. The second thing would be, what all things would you like to be shown on your desktop as whenever a client or an employee logins? What thing would you see on the desktop? The first thing which you will see, like an agenda or something, or the timeline, the meeting, and everything else. Okay. So let me give you an answer. Like, so every user have a different dashboard. तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ for like employee. ठीक है? एक employee के लिए सबसे important क्या है? Once he logs in, तो first चीज उसको क्या दिखनी चाहिए? There would be 5-6 things जो he should able to see. First would be obviously his, attendance कैसा चल रहा है उसका. Second would be कि उसका leave balance क्या चल रहा है. Third would be कि holiday calendar क्या है. Fourth would be his tasks, and then so on. Like it could be like his payroll का उसका क्या data चल रहा है. Dashboard should have simple 5-6 चीजें जो एक employee के लिए बहुत जरूरी है. Attendance, leaves, his task management, holiday calendar, news, एक news का भी section होता है और the announcement. ये सब चीजें basic होनी चाहिए. Guys, Yes, keep sir. noting And down different these users- keep noting down the different users- answers because मैं individually सबसे पूछने वाला हूँ कि क्या note down किया because सिर्फ सवाल पूछ लेने से कुछ नहीं होता है किसी दूसरे ने भी पूछा then it should be there on your notebook कि मैं ये समझा this is what I made out of all these conversations क्योंकि कई बार क्या होता है ना guys कि as a business analyst as a product owner you are not allowed to ask directly to a client ठीक है very high level because देखो I was working as a scientist with you वहां पर हमारे जो मेरे साथ जो एक बिजनेस एनालिस्ट थे वो टेक्नाटॉम कंपनी के थे इट्स अ स्पेनिश कंपनी वो आ रहे थे एंड देन वी यूज्ड टू बी नोन एज वेरी बिग चैप्स तो हमारे से बात करने के लिए भी वो लोग बहुत सोचते थे 4 बार कि यार क्या बोल देंगे कैसे नहीं तो दैट तो उस सेंस में वो लोग क्या करते थे दे यूज्ड टू लिसन टू आवर कन्वर्सेशंस लाइक अगर हम किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं तो दे वुड ओनली सिट beside and listen to our conversation and then they'll make us छोटा product and show us कि sir is this what you're looking for हम इसको ऐसे improve कर सकते हैं तो कई बार आप इस तरह से भी opportunity grab करते हैं इसलिए as a product owner आँख कान सब खुले होने चाहिए what's being discussed should get into your notepad हमेशा ठीक है सूरज go next Sir, you have talked about 5 users, so let's talk about HR users. So what are the functionalities you want in HR user? What are the functionalities HR should perform? Okay, so What the basically, so as I told you कि हमारे पास जितने भी 8-10 modules जो HRMS में होंगे, all these modules will be handled and governed by the HR person only. So इसके मैं आपको example देता हूँ 2-3 example. Say like कि आप recruitment वाला module बना रहे हैं, so HR के पास सारा control होगा कि recruitment कब raise हो रहा है, requisition कहते हैं, right? रिक्वेस्ट कब रेज हो रही है उसको अप्रूव करना कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड करना इंटरव्यू शेड्यूल करना उसको डॉक्यूमेंटेशन करना ऑफर जनरेट करना ये हमारा एक बेसिक उसके लिए हो गया पेरोल रिलेटेड अटेंडेंस रिलेटेड लीव रिलेटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिलेटेड सारे राइट्स एक एचआर के पास होंगे ईच एंड एवरी मॉड्यूल विल बी गवर्न्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द एचआर द फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी एचआर ही होगा बिकॉज़ इट्स अ एचआरएमएस सॉफ्टवेयर अभिषेक कौशल यू आस्क्ड अ क्वेश्चन फटाफट एकदम ही कुछ तो सोच रहे होंगे Sir, as Bhanu sir told us just about the hiring and recruitment process. So I want to ask you that you want to show all the details about their behavior, their performance to all the employees, or you just want to make sure that you have the access to that point? No. So see, a candidate who applies on a job, ठीक है, उसकी सारी information only and only HR के पास ही होगी, किसी और के पास नहीं. Once HR decides कि इस कैंडिडेट को हमें इसके साथ इंटरव्यू कराना है, right? So HR will only share कि उसका CV शेयर करता है, not probably जो उसको सब कुछ शेयर करना है, that HR will decide कि उसको क्या-क्या शेयर करना है. So HR might decide कि मुझे इस मैनेजर को इस कैंडिडेट का CV शेयर करना है and ये डिटेल शेयर करनी है. So HR के अलावा किसी और अदर पर्सन को बिल्कुल भी कोई राइट नहीं होगा to see any other information Any kind of data. Right. But HR would have rights कि उसको देना चाहता है कि वो इसका ये डिटेल्स देख ले. I'll go back again to शिखा सिंह. शिखा सिंह बहुत देर तक आप चुप थे. मैंने सोचा कि आपने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा. अच्छा सवाल पूछिए बिल्कुल.
शिखा सिंह, am I Okay. audible? So अच्छा सवाल पूछिए, बिल्कुल। yes, yes. Yes. So actually, I was thinking whether HR. Sorry. गाइस, बाकी लोग जो बात नहीं कर रहे हैं they can actually mute themselves. ठीक है, हमेशा आप जब आप बात करेंगे ना, एक देयर इज अ सेटिंग इन द कीबोर्ड जिसमें क्या होता है कि व्हेन यू प्रेस द स्पेस बार इन द जूम सेशन तो आप अनम्यूट हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड सेशन। ऐसे आप यूएन में भी कभी अगर ऑफिसर बन के जाएंगे ना, वहाँ पे डिप्लोमेट वगैरह, तो दैट्स हाउ इट इज। आप बताइए, बोलिए, फिर छोड़िए, तो फिर उसके बाद इट्स गोना बी लाइक कट ऑफ। तो नहीं तो आप कुछ कुछ अपने अगल बगल में बात कर रहे होंगे, वो भी चला जाएगा ना, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, तो ये अच्छा नहीं रहता है। इसलिए गेट इन टू द हैबिट ऑफ यूजिंग दैट। अगर आप स्पीकर हैं, मेन स्पीकर हैं, ओनली इन दैट केस आपका जो आप अनम्यूटेड होने चाहिए। अदरवाइज आप कोशिश करके देखिए, यहाँ पर आपने दबाइए, स्पेस दबाने पर अनम्यूट हो जाता है। स्पेस दबाया, मैं अनम्यूट, स्पेस मैंने छोड़ दिया था, म्यूट हो गया था फिर से। ठीक है, Yes, sir. So यस शिखा। shall I Yes, begin? Shikha. Yep, yep. So as sir insisted that there would be 6 modules like for different hiring departments, right? So for such hiring managers, like where would there be a dashboard to handle their salary estimation or something? I didn't get your question. Like, आप क्या बोल रहे? Salary estimate? I didn't understood. Like, Yeah, like to manage their salary part or their like yes, attending. there would be a different module for a payroll. It would be entirely a different module, जो कि like जो सब कुछ payroll वगैरह ही मतलब manage करेगा. So it would be entirely a different module. Okay. गाइस, एक और सेशन करके देखते हैं। प्रॉब्ली मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता हूँ, ठीक है, इस मामले में। तो इसलिए क्या करते हैं, भानु इज द क्लाइंट, ही इज कम टू मी, ठीक है, आई एम द बिजनेस एनालिस्ट, आई विल आस्क हिम क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं। भानु, बी वेरी कोजेंट, वेरी डायरेक्ट टू योर आंसर्स एंड वेरी लिमिटेड इन व्हाट यू आर सेइंग। नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जस्ट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, सो दैट मैं अपनी एफिशिएंसी दिखाने का वो दिखा सकूं, मतलब। ठीक है, तो मैं आपके पास आया, यू आर द क्लाइंट। तो सर, भानु सर, व्हाट आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं? हम आवर्स इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, आप क्या बनाना चाहते हैं बेसिकली, आप उसके बारे में बताएंगे? I want to make a software from hire to retire. भानु जी, हायर टू रिटायर में तो हम बहुत चीजें देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम गेटिंग अ कैंडिडेट ऑन बोर्डिंग इनटू द कंपनी, गेटिंग समवन ऑन बोर्डेड इनटू द कंपनी, टू लीव, कि वो लीव के लिए भी अप्लाई करेगा, से लेकर ही विल आल्सो टेक सैलरी, सो पेरोल वगैरह, एंड देन वो रिटायर जाएगा तो ग्रेचुइटी वगैरह, सारा कैलकुलेशन वगैरह। सो डू यू रिक्वायर एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज गोना बी अ बिग प्रोजेक्ट। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक आपका इंटरेस्ट होगा, या फिर आप पूरा लेना चाहते हैं? पूरा, the entire module. ओके, All आप modules. भानु जी, आप अपनी कंपनी का हायरार्की बता सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन है और वो क्या क्या संभालता है? बस मेरे को इस इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत होगी टू एक्चुअली मेक अ सिस्टम जो कि आपके लोग इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि हमें हर सोल्यूशन को कस्टमाइज करना पड़ता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप बता सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन बैठेगा, उसके नीचे कौन बैठेगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, और किसका कितना अधिकार है, मतलब कौन कौन बंदा कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है। सो आई वुड लाइक यू टू मेक समथिंग फॉर मी लाइक दैट। आप कुछ तो आप अभी बता दीजिए, और कुछ आप जाने के बाद आप अपनी कंपनी से निकाल के मेरे को मेल कर दीजिए, या फिर मैं बना लेता हूँ, एनीथिंग, जैसा आप समझिए, आप बता सकते So like, हाँ, हम लोग hierarchy में will start from the top, right? So we have BOD at the tops, Okay. right? Then we have HODs, ओके, right? And then we HOD के नीचे then we have project managers and the team members, ठीक है? And then, right? So यहाँ पे हमारे पास BOD will have as I said, super user dashboard, right? Then HODs will have उनका जो team members है, their team members का जितना भी control है, except for payroll and separation modules, they will have control of everything like performance management, recruitment, and attendance and leaves. Right? सर मेरे को आप एक बात बताइए, जिस क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना, इसलिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ।
क्योंकि आप मेरे को एक बात बताइए, जैसा कि आपने समझाया, सबसे ऊपर होगा आपका बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप Right. या फिर एलएलपी है, ठीक है ना। उसके बाद Right. आपके बहुत सारे एचओडीज हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो एक डिपार्टमेंट Right. सेल्स डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, इज व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। Right. Right. एक एचओडी के अंडर बहुत सारे टीम्स होंगे, प्रोजेक्ट और Managers of- एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, राइट, क्योंकि प्रोजेक्ट टीम्स होंगे और बेसिकली उनका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। ये अब तक मेरे को समझ में आया, क्या ये सही है? Right. Right. Absolutely, Ankit. ओके ओके, ठीक है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कौन कौन से प्रोसेस, क्या आप अपनी कंपनी के सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं एचआरएमएस में, जैसे कि एक बंदा जब आएगा वहां से लेकर ये सब कुछ ही, या फिर आप कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं और कुछ आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड है? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू गो फॉर? हाँ, तो हमारे पास एज ऑफ नाउ हमारे पास 4 मॉड्यूल्स पहले से अवेलेबल है, बट वी वुड लाइक टू इंटीग्रेट इट। हमारे पास अटेंडेंस, लीव, टास्क मैनेजमेंट अभी अवेलेबल है, एंड देन रेस्ट मॉड्यूल्स हम लोग डेवलप कराना चाहते हैं, जो बाकी 3 मॉड्यूल्स हैं उसको इंटीग्रेट भी कराना चाहते हैं, विच आर ऑलरेडी अवेलेबल। ओके, अटेंडेंस, यानी ऑल आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ से कि आपका अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये दोनों चीजें आपके पास हैं इस वक्त, राइट। आपको चाहिए कि हम आपको एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि एक बंदा आपकी कंपनी में रिक्वेजिशन कैसे रेज होगा, तो अब इस तरीके से चलते हैं। आपकी कंपनी का में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला, आपकी कंपनी में किसी को हायर करने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। हायर करने के लिए सपोज आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि आपका जो एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें कई टीमें होंगी। उस कई टीमों के नीचे कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ऐसा महसूस होगा कि उसको एक और बंदा चाहिए, चाहे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट में किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को महसूस होगा वो उसको एक बंदा चाहिए, राइट। तो उसके पास एक लैपटॉप पे, या फिर उसके पास जब वो लॉग इन करेगा तो उसके पास एक सामने आ जाना चाहिए वो रिक्वेस्ट रेज करने का एक सिस्टम, जहां पर वो बता सके कि मैं इस प्रोजेक्ट मैनेजर, ये वाला डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ये वाला चीज देखता हूँ और मुझे एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वो वहां से, ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू वांट। उसके बाद अप्रूवल कौन देता है, आप बता सकते हैं? जैसे कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टली अपने नीचे किसी को रख सकता है, या फिर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा? आप मेरे को ये समझाइए। हाँ, सो मैं आपको बताता हूँ कि ये दो तरीके से होगा, based on designation. It's if it is a lower designation, so there would be 2 round of approvals. पहला approval will go to the HOD, and the second approval will go to the HR head. Right. And if it's a higher designation, then the first approval will go to HOD and then to the BODs. Okay, Banu, that's all for today. Thank you so much for being with us. हम क्या करेंगे कि we will make a solution और हम आपसे further कुछ questions लेकर आएंगे और आपसे मिलेंगे, जिससे हम और ज्यादा रिफाइन कर पाएं कि हमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ठीक है। अभी तक जो हमें आंसर्स मिले हैं, इसके बेसिस पे विल मेक फ्यू स्लाइड्स, कुछ प्रेजेंटेशन, और आपको दिखाएंगे वहां से, ठीक है। थैंक यू अंकित। ऑलराइट गाइस, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा किया ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू एक्ट एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मैंने क्या किया एसेंशियली, मेरे सामने क्लाइंट आया, सबसे पहले मैंने उसको बोलने का मौका दिया। मैंने उससे पूछ लिया कि सर आपको चाहिए क्या, ये बता दीजिए, ठीक है। मैं पूछूंगा आपको बकरी चाहिए? नहीं। भेड़ चाहिए? नहीं। सेब चाहिए? नहीं। खीरा चाहिए? नहीं तो ऐसा तो मैं कई चीजें पूछ सकता हूँ ना। द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अहेड विद दीज थिंग्स आर लाइक कि थोड़ा क्लैरिटी आते जाए। मैंने पूछ लिया कि सर आप बताइए आपको चाहिए क्या, आप क्या बनवा, हमारी तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप बोलोगे भेड़ बना के देने के लिए, हम वो भी बना देंगे। आप बोलोगे सेब देने के लिए, वो भी दे देंगे। आप बोलो आपको क्या चाहिए। वंस ही मेंशन्ड कि उसको भेड़ चाहिए, फिर मैंने उससे पूछा कि पहाड़ी भेड़ चाहिए, नीचे वाली भेड़ चाहिए, बहुत ऊन वाली भेड़ चाहिए, ऊन कौन से कलर की होनी चाहिए। देन आई स्टार्टेड विद ऑल दीज थिंग्स। यानी कि व्हाट आई डिड इज आई वेंट ऑन फॉर एक्सप्लोरिंग समथिंग व्हिच इज अनएक्सप्लोर्ड। मैंने बोला कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने बताया, आई गॉट अ डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में भी बहुत सारे डायरेक्शंस थे, राइट। ईस्ट वेस्ट होता है, ईस्ट और वेस्ट में भी कई डिग्रीज होते हैं, करते हैं। Then I tried to zero in onto his actual requirements. तो मैंने उनसे और भी पूछा डिटेल में कि आपको बेसिकली कितने मॉड्यूल चाहिए, क्या आपको सब कुछ ही चाहिए? He said हमें ये मॉड्यूल इंटीग्रेट करना है, ये चाहिए। ओके, वो सब ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि इस तरह के किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए
मेरे को उनके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज उनको चाहिए क्या था, एक ह्यूमन रिसोर्स में और क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन और उसका हायरार्की ही तो आता है, उसके अलावा क्या है, मेजर थिंग्स आर दैट, राइट? व्हाट आई एसेंशियली डिड इज आई आस्क्ड हिम डायरेक्टली कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की बता दीजिए मेरे को। आधी चीजें मेरे को खुद ही समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या चीजें होंगी, मतलब हाउ थिंग्स वुड बी मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, ठीक है। उसके बाद डेटा फ्लो समझना पड़ रहा है, दैट्स हाउ आई वेंट। तो इफ मेरे को लगता है कि आई डिड गुड, आई डोंट नो, बाकी सो आपको समझ में आ गया ऑल इस एक्सरसाइज का होल रीजन। मेरे को लगा था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट इस एक्सरसाइज का मेजर जो रीजन था या फिर जो मोटिवेशन था वो ये था कि यू फंडामेंटली अंडरस्टैंड कि बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा। आज के बाद आप जब इंटरव्यू में भी जाओगे ना किसी बिजनेस एनालिस्ट के लिए या फिर की, तो आपको एक अच्छे से पता होगा कि बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है और रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे की जाती है। नॉट ओनली दैट, यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टार्ट कैसे करें, पहले सामने वाले को बुलवा दें कि उसको क्या चाहिए और फिर उसको धीरे धीरे करके गाइड करें। गाइड करने का टाइम सबसे लास्ट में आएगा गाइस। गाइड करोगे आप ये बोलकर नहीं नहीं सर वहां पे लाल अच्छा नहीं लगेगा, यू शुड हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड, दैट इज गाइडिंग। लेकिन आप ये नहीं गाइड करोगे कि वो बोलेगा मेरे को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, आप बोलोगे नहीं नहीं सर आप स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ले लीजिए हमें बहुत अच्छे से बनाना आता है, दैट्स नॉट गाइडिंग, फिर वो नहीं लेगा आपसे, ही विल गो अवे, ठीक है। व्हेन यू बेसिकली गो अलोंग विद हिम, बहुत उसके साथ चल के उसकी डायरेक्शन में जाओगे तो लास्ट में थोड़ा बहुत आप भी उसको चला दोगे अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू गाइड, स्टार्टिंग से गाइड नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग काफी अच्छे से पता चला आपको कि इंडस्ट्री में किस तरीके से बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली काम करेंगे, एंड व्हेन यू एक्चुअली गो फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, चाहे आप बिजनेस एनालिस्ट बने या ना बने, अंडरस्टैंडिंग ऑल दीस थिंग्स इज वेरी नेसेसरी, एंड दैट्स व्हाई यू इंटर्न, राइट? इंडस्ट्री पढ़ के नहीं पता चलता, बट व्हेन यू इंटर्न यू गेट टू नो। तो दैट्स हाउ थिंग्स वुड बी डन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजनेस एनालिस्ट को हमें चाहिए आपकी टीम से कौन कौन था? आप ही में से कोई बता दीजिए, डू नॉट वोट योरसेल्फ, लेकिन आप बता दीजिए अगर कोई किसी और के बारे में बोलना चाहता है कि यू थॉट दैट समवन एल्स एक्चुअली एक्टेड एज अ वेरी गुड बिजनेस एनालिस्ट। Can you guys do that? Can you write in the chat? I mean, you write someone else's name who you think acted as the best business analyst. We can, because देखो एक्सरसाइज के बाद तो सबको क्लियर हो ही चुका है ना। दो तरीके हैं इसके बाद। नंबर वन, हम ये कर सकते हैं कि वी कैन लेट यू आस्क क्वेश्चंस वंस अगेन, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, है ना। अदरवाइज आप ही लोग आप में से कुछ चूज कर लीजिए। और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट्स डू वन थिंग फॉर अ डे और सो, लेट्स मेक एवरी वन ऑफ यू अ बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, बिकॉज वी आर इन नो हरी टू स्टार्ट कोडिंग, तो सबको बिजनेस एनालिस्ट बना देते हैं। एवरीवन आई मीन गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो भी पॉसिबल है। आपको एक एचआरएमएस सॉफ्टवेयर के कौन कितने मॉड्यूल होने चाहिए, क्या क्या, सब ढूंढो एकदम अच्छे से, ठीक है। गेट बैक टू अस प्रोबेबली टुमारो, कल देखेंगे, कल विल हैव अ सेशन और कल हमें मालूम चल जाएगा कि आप में से कौन बिजनेस एनालिस्ट बनेगा। बिकॉज जो बिजनेस एनालिस्ट बनेगा गाइस, दैट पर्सन विल बी लीडिंग, वो बात करेगा डायरेक्टली विद द क्लाइंट एंड द प्रोग्रामर्स विल बी प्रोग्रामिंग। एक और काम ये कर सकते हैं, इफ यू ऑल एक्सेप्ट और डू टेक माय सजेशन, कि बारी बारी सबको रोल दे सकते हैं टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। दीज रोल्स आर बेसिकली इंटरचेंजेबल। तो आप प्रोग्रामर भी रहेंगे, आप टेस्टर भी रहेंगे। आजकल तो बड़ी प्रोग्रामिंग होता है ना, पर्सन प्रोग्राम्स एंड द अदर वन टेस्ट। साथ ही साथ टेस्टिंग का कोई अलग फेस तो होता नहीं है कि हम पूरा प्रोडक्ट बना लेंगे और बाद में वी विल स्टार्ट विद टेस्टिंग, नो। उसी समय बनाया, साथ ही साथ सबका जो बड़ी है वो टेस्ट कर लेगा, उसके बाद सामने वाला बड़ी इज डिजाइनिंग एंड देन दूसरा वाला बंदा इज गोना टेस्ट। दैट्स हाउ यू डू, है ना। एजाइल फ्रेमवर्क में इसी तरह से काम होता है, तो वी कैन डू दैट एज वेल। लेट अभी हम एक काम करते हैं, देखो कल के लिए बिकॉज वील अगेन हैव टू रिकन्वीन, तो कल के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स डू एन एक्सरसाइज एट द बैकग्राउंड, फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज एन एचआरएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक्सरसाइज करो, ठीक है, लोगों से पूछो, ये करो। ट्रेन योरसेल्फ टू आस्क दोज एनालिटिकल क्वेश्चंस, ट्रेन योरसेल्फ टू आस्क दोज स्ट्रिक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। ट्रेन योरसेल्फ डूइंग दैट, ठीक है। आप ट्रेन करोगे आपको आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, 4 लोगों से बात करोगे, यू विल बिकम अ वेरी गुड बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू पीपल, ठीक है, टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर इश्यूज एंड देन रिजॉल्विंग इट थ्रू हिज strategy and tactics.
लोगों से आप बात करो, ठीक है, ask few people, आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करो, ये नहीं कि चीटिंग वीटिंग मत कर लेना, रिक्वायरमेंट गैदर करो और आओ, then we can have a discussion and then we can actually formulate a blueprint, एक blueprint बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, we will convert that blueprint into user stories, वो भी सबका टास्क होगा, ठीक है, we will convert all those blueprints into user stories, UML डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे, वो सब सीखेंगे, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम वगैरह एक दिन बनाकर we'll have sessions on this, हम सब सीखेंगे और सबके सब बनाएंगे, और उसके बाद then we'll go back to your actual thing of coding in Node.js and React.js. How does that sound to you guys? आप लोग बताइए. I mean, you guys can comment in the comments ना, मैं देखता रहूँगा. Any other suggestion वो भी आप लिख दीजिए. I want each and everyone to participate और बताने के लिए ना. Otherwise, I'll not know. Someone says sounds great. Okay. सभी के सभी का आंसर चाहिए भाई, ऐसे I will never understand. ठीक है, everyone should have equal participation. Suraj, I did not hear anything from you. Ame, again nothing. Rishabh, nothing. Ashish, nothing. Sharanya, you again have to write something. Yes, I've actually commented already. Okay, you commented already. अच्छा, मैंने देख. So probably you guys are okay. Oh, I'm so sorry. इतने सारे comments आ गए हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैंने 4 ही देखे अब तक. All right. ठीक है, हाँ. And Ame says that rotational role is going to be good. ठीक है ना, because you guys get to learn a lot doing that. सब लोग role play करेंगे तो सब लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि exactly कैसे होगा. ठीक है, guys. अभी का जो सेशन है ना, let's end it right away. Let's start with talking about energy. आपको मैं बताता हूँ. Hoffer's internship program is basically Hoffer's energy internship program. ठीक है. The very reason of having you onboarded here is not to ask you guys to design some software वगैरह, HRM software वगैरह बनाना is not. ये तो आपके programming skills को थोड़ा सा brush up कर लेगा, and probably जो next session आएगा या फिर 2 महीने के बाद when we start dealing with some actual real clients, तो उसमें थोड़ा आप लोग का stipend वगैरह का बंदोबस्त भी कर देगा. तो all those things will. That's the reason we are going ahead with these things. The reason we are basically the sole motive of having this program is to actually train you guys in energy sector. ठीक है, हमारा जो goal है that is sustainable development. Sustainable development के लिए each and everyone has to understand. I am a nuclear cum energy expert. ठीक है, through me you guys are gonna understand what is it to do with energy, what is carbon dioxide emission, किस तरह से उनके कैलकुलेशन करते हैं, हाउ डू वी मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, ऐसे पाइथन में मॉडल कैसे बनाएं. ठीक है, तो मोस्टली विल बी फोकसिंग ऑन द पाइथन प्रोग्रामिंग. धीरे धीरे करके विल बी मूविंग अहेड. जैसे जैसे ये चीजें शुरू हो जाएंगी ना, विल बेसिकली बी मूविंग टुवर्ड्स द पाइथन साइड. मेरे को पता है कि आप सब लोग पाइथन के लिए आए हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ हम जाएंगे. We'll start making models, we'll start making energy models, we'll start making financial energy models. And by the end of this internship, what I want is that आप लोग बहुत ही अच्छे energy model बन के निकलें यहाँ से, wherein your expertise in Python, number 1, number 2, you have a sound understanding of everything in and around in the energy sector. आपसे कोई पूछे तो आप बता सके, हाँ कार्बन एमिशन कितना हो रहा है सर, this is the way we can reduce it. ये सब इतने सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं. This is how we do an assessment about these technologies. This is how we can come up with an idea. This is how we have actually done in the past. ठीक है, you guys have to get associated with what is called as sustainable development goals of the UN. इस program के through, I will ensure that you get in touch with what is called as the International Atomic Energy Agency, the International Renewable Energy Agency, various organizations like various universities in the US जो कि इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, and also various government agencies. Probably we can think of something like a visit to a nuclear power plant in India or outside as well, because हम जियो वाटर के साथ भी एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे थे. एंड द गुड थिंग इज दैट देयर वाज अ एजेंसी जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, द वन आई एम टॉकिंग अबाउट. उन्होंने क्या किया था, दे फंडेड 17 ऑफ आवर स्टूडेंट, नॉट 17, सॉरी 17 इज अ नंबर, I believe 7 of our 7 या फिर डबल, क्योंकि देयर वर अदर कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एज वेल, तो दूसरे देशों के भी थे. ठीक है, तो इंडिया से 7 इंडियंस जो कि बाहर गए थे, एंड दे विजिटेड व्हाट इज कॉल्ड एज लेनिनग्राड न्यूक्लियर पावर प्लांट during the very same thing.
तो हम उसी तरह का कोलैबोरेशन से फिर से करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली गो ऑन सम काइंड ऑफ एक्सकर्शन लाइक दैट। ठीक है, उसके लिए आपका जो अवेयरनेस, सो दैट यू गाइस बिकम मोर एंड मोर अवेयर, एंड आपका जो टेक्निकल स्किल्स है टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी, टुवर्ड्स एनर्जी इंजीनियरिंग, ये सब बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ जाए। ठीक है, दैट्स आवर मेन गोल। आपका मेन गोल HRMS बनाना नहीं है, बट देन हाँ, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि यू आर गेटिंग टू लर्न कि एक्चुअली इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करना होगा। ठीक है, व्हेन यू गेट आउट ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, आई कैन एश्योर यू दैट you guys are going to be one of the most skilled in the area you have been working on here. Number two is that you're going to be very confident, because the kind of exercises which I'm giving you, if you do that honestly, अगर आप वाकई में ऑनेस्टली जाकर काम करेंगे और काम करके लोगों से मिलेंगे, जैसा कि मैंने बोला आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना है, अगर आप वाकई में 4 लोगों से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और कल एक अच्छा रिपोर्ट बना के पेश करते हैं, तो आई कैन एश्योर यू कि आप अच्छे बिजनेस एनालिस्ट कल ही कन्वर्ट हो गए। यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज टू बी ए बिजनेस एनालिस्ट। आपने एक रोल के ऊपर महारत हासिल कर लिया है। ठीक है, एक्सपीरियंस इज व्हाट विल कम विद एक्सपीरियंस, विद टाइम। ठीक है, बट देन द फर्स्ट इनिशियल नॉलेज जो कि आपको चाहिए टू गेट इनटू सम प्लेस जहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकें, वो आपके पास आ चुका होगा। बाकी आपकी बाजी होगी, आप इंटरव्यू में कितना अच्छा बोल और गा और सुना सकते हैं। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। खास तौर पे शुभ फॉर यू एज वेल, आप देख रहे हैं, यू गाइस यू वुड बी फाइटिंग इन द अमेरिकन मार्केट। वहां पर क्या होता है कि जॉब आर मेनी, बट देन फाइंडिंग अ क्वालिटी जॉब इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पर अगर जॉब ज्यादा हैं तो वहां पे क्वालिटी लोग भी बहुत ज्यादा हैं, राइट? तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू हैव lots and lots of knowledge regarding everything. US में और बाकी कंट्रीज में तो खास तौर पे ऐसे होता है। तो इन दैट केस ना आपको बहुत अच्छे से ट्रेन होना है। इफ यू आर एक्चुअली सीकिंग ऑफ अ करियर समवेयर इन द IT सेक्टर, तो फिर गेट ट्रेन योरसेल्फ ट्रेन थ्रू एन इंटर्नशिप as a business analyst, then as a core programmer. Get to know कि agile way of programming होता क्या है। Actually be in a team involved in such a way that आप day to day activities वो सब ऐसे कर रहे हो कि आपको पता हो। कल आपसे पूछेगा कि एजाइल का स्क्रम बताओ क्या होता है, तो आपने महसूस किया होना चाहिए। यू डोंट हैव टू रीड इट इन अ बुक एंड देन गो एंड टेल दैट आपने, हाँ मैंने काम किया हुआ है। हमारा क्या होता था कि वी यूज्ड टू हैव डेली मीटिंग्स, स्क्रम मीटिंग्स, वो इनफॉर्मल मीटिंग्स होते थे। वी यूज्ड टू टेल अस कि हमने कल क्या किया था, हम आज क्या करने वाले हैं और हमारी क्या परेशानी है। हमारा स्क्रम के स्प्रिंट के बाद एक और मीटिंग, 2 और मीटिंग्स होते थे, उनका ये नाम है, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डिस्कस, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू। All these things will get into your personality, all these things will get into that role जो कि आप play करेंगे, so that you will understand, you will remember them forever. So that's how I would reiterate once again that this program is Hofus Energy Internship Program. ठीक है, this is the flagship program of our corporation, that is Hofus. हम इसको launch कर रहे हैं और हम इसको करवा रहे हैं not because we would like to gain something out of it, but to create societal awareness regarding all these energy issues, ताकि कल अभी जो हम बच्चे बना रहे हैं, हमारा जो मेन एम है वो ये है कि डाइवर्टिंग मेनी पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो IT से हो, जो HR से हो, जो CX से हो, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, इनटू वन सिंगल डोमेन जो कि है एनर्जी सेक्टर, ताकि एनर्जी क्राइसिस जो कि हम आज से आगे आने वाले टाइम पे देख रहे हैं, दैट विल बी डेल्ट विद इन अ टाइमली वे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे जा सके। ठीक है, दैट्स व्हाट आवर मेन टारगेट इज एंड दैट्स व्हाट वेयर वी आर हेडिंग। तो धीरे धीरे you guys will feel that we are actually moving from being a software engineer to basically being someone who can actually understand what is the problem with the energy sector and how do we model all those scenarios using Python. ठीक है, तो I would again say that Python को अपना सिंगल टूल रखो जिसके ऊपर आपका एक्सपर्टीज बहुत अच्छा होना चाहिए, and then start playing with that background पे। ठीक है, because someday I can directly ask you कि ठीक है मेरे को ये करके दो, and then मुझे पसंद नहीं है कि कोई सर मेरे को ये नहीं आता, सर मैं तो इसके लर्निंग फेज में ही हूँ। बिकॉज अगर ऐसा है तो आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे? ठीक है, एटलीस्ट गेट योर हैंड्स, प्रैक्टिस करो नमपाई, पांडास वगैरह के ऊपर, जो बेसिक एक्सेल फंक्शंस वगैरह होते हैं वो पाइथन में किस तरीके से किए जाते हैं, गेट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। दूसरे गाइस, पीपल हु आर गुड इन मशीन लर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स, मेरे को आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज राइट नाउ मैं आपको बताता हूँ, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन समथिंग जो the project is going to start from 1st of July. That is a market model. Market model is going to be predicting कि आगे आने वाले टाइम पे सोलर एनर्जी का कितना खपत होगा, मार्केट वायबिलिटी कैसी होगी फॉर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट और फॉर अ थर्मल और अ सोलर पावर प्लांट। सो ऑल दोज कैलकुलेशंस, ऑल दोज एस्टिमेट्स, ऑल दोज थिंग्स आर टू बी मॉडल्ड इन इक्वेशन। और मॉडलिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स
चीज होती है, ठीक है, एंड that has to be written down in codes, right, so that हम लोग उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज कर पाएं. So ये सब होने के लिए I would really ask you guys to motivate yourself starting से ही, ठीक है. सेल्फ मोटिवेशन भी एक चीज होती है. Start with your Python. बैकग्राउंड पे पाइथन का भी हाथ वगैरह अच्छे से बना के रखो, because if you really guys want to get into the core research group, Python is one way of doing that. ठीक है, I'm telling you the secret. Python is one way of doing that. अपना कमांड करो. शिखा, आपने बोला था आपको ईवी वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा लग रहा है. पाइथन के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो बहुत अच्छे से. Yes, sir. All right, guys. Guys, do you have any final suggestion for me? क्योंकि आज पहला सेशन था ना हमारे क्लास का, मतलब क्लास क्या, this is basically an on-job training, not a class. So, any suggestion for me, guys, so that I can improve on to myself? Teaching methodology में कुछ changes वगैरह, कुछ और चीज चाहते हैं जो कि मैं include करूँ? कम बोलूँ, ज़्यादा बोलूँ, loud बोलूँ, धीरे बोलूँ, anything, any sort of suggestion? You are most welcome. आप लोग यहाँ पर directly लिख दीजिए. And then I'll try my best to stick on to all those things. Yes. Shubh. I just wanted to ask, sir, WhatsApp group कब बनेगा? हाँ, WhatsApp group के लिए guys हमारे पास we have got all the numbers, ठीक है, तो we'll be making a WhatsApp group. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि because I wanted you guys to break down into छोटे से ग्रुप्स लाइक Node.js और React.js, so आप लोग, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनेगा. सिंस मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है जो इनिशियली हम हैंडल कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट. इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में टाइम तो लगेगा. मैं चाहता हूँ कि 2 महीने आप लोग बहुत अच्छे से लगाएं इसके ऊपर, और वाकई में जो भी चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि आई वुड लाइक टू सी व्हाट इज अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. HRMS का सॉफ्टवेयर बहुत पड़े हैं दुनिया में, ठीक है, आई कैन बाई वन. मैं ऐसे दूंगा 10,000 रुपए में आई कैन गेट वन फ्रॉम द मार्केट. नो, आई डोंट वांट दैट. व्हाट आई वांट इज समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब अगर मैं किसी को बोलूं कि दिस इज द फीचर व्हिच वी आर गिविंग विद द HRMS का सॉफ्टवेयर, तो उनको बोले वाओ, दैट्स समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, दैट इज समथिंग जो कि मैंने कहीं सुना ही नहीं. सर आप हमें ये दीजिए ना. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? You guys are not employees, you guys are interns. The good thing is that you guys study, you are into R&D. आप लोगों को मैं सैलरी नहीं देता कि आप लोग सोचते हैं हाँ यार इतने सैलरी के लिए मैंने बहुत काम कर लिया, ठीक है, आई हैव जस्ट पाइड माय सैलरी. ऐसा कुछ है नहीं. यू गाइस हैव टू डेवलप योरसेल्फ, है ना. तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम आपको आते हैं, आप लगाएंगे उसमें. आप अटेंडेंस सिस्टम ही बनाना है तो यू गाइस विल इंप्लीमेंट व्हाट इज कॉल्ड एज अ फेशियल डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, जो कि आप उसका एक पार्ट होगा, सो दैट एक बंदा कमरे के अंदर जाए और एक बड़ा सा वेबकैम हो, उसको इधर मूव करने की जरूरत भी ना पड़े, एंड देन ही गेट्स आइडेंटिफाइड. ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जब बना रहे होंगे तो विल बी यूजिंग द वेरी सेम फंक्शनैलिटी देयर एज वेल. बच्चे दौड़ दौड़ के भी जा रहे हैं तो अगेन दे गेट कैप्चर्ड. आप समझ गए ना. यू गाइस हैव टू वर्क ऑन एट दैट लेवल, ठीक है, बिकॉज यू आर इंटर्न्स. हम सभी के सभी वी आर स्टूडेंट्स, हम कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए हैविंग सेड ऑल, मैं आपको बताता हूँ कि आई विल बी मेकिंग ओनली वन ग्रुप फॉर द होल टीम नाउ. I can see right now over here we have 9 people. Let's see if Akriti is also part here. Akriti is not here. I think she's left. She asked me, she sent me a message and then she left. Yeah. So यहाँ पर हमारे पास हैं 10 लोग, ठीक है. Right now I'll make a team of exactly 10 people. In 10 people में ही rotational basis पे will be working as business analyst. Rotational basis पे will be acting as whatever we want to learn, ठीक है. But then eventually we'll be teaching each other और एक peer to peer interaction में plus with the mentors, ठीक है. mentors मैं कुछ और भी लोगों को लेकर आऊंगा. that way we'll be communicating with each other और हम वो बना के सॉफ्टवेयर दिखा रहे होंगे डे टू डे बेसिस पे कि हमने कितना डेवलप किया. पहले 2-4 दिन हम सिर्फ सोचेंगे एज आई से, है ना. मेरे को वो लोग बंदे पसंद आएंगे जो कि 1 घंटे खाली प्रोग्रामिंग करें, 23 घंटे सिर्फ सोचें. सो विल थिंक कि हमें क्या करना है. आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, एंड आई विल आस्क आकृति टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड देन शेयर. सरन्या, यू हेल्प आकृति इन दैट, ठीक है. आप दोनों मिलकर ये काम करिएगा. Yes, sir. Yeah. उसके बाद फिर देखते हैं फिर कैसे होता है. देन वी कैन हैव ऑल द इंपॉर्टेंट चैट्स एंड डिस्कशंस देयर. उसमें मैं डायरेक्टली लिंक डाल सकता हूँ जिसके ऊपर मैं प्रेजेंट हो पाऊंगा. एंड देन सो दैट्स हाउ वी विल वर्क, राइट. एनी अदर क्वेश्चन? Shubh, yeah, anyone else?
डायरेक्टली बोल सकते हैं, रेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नहीं बोल रहा अभी। सर मीट लिंक ये सेम ही रहेगा मीट टाइम के लिए? अभिषेक, मीटिंग लिंक के लिए हम क्या करेंगे ना कि I'll create a calendar का invite and all those things। तो उसमें क्या होगा कि I'll give you a username password as well। तो आप लोग पासवर्ड अपने पास ही रखिएगा, ठीक है? तो ओनली यू गाइस विल बी हैविंग, और वही लोग एंटर कर पाएंगे, बिकॉज मैं डायरेक्टली यहाँ पर एडमिट नहीं करना चाहता। आई वुड लाइक टू मेक इट बिल्कुल फ्री कि आप डायरेक्टली आ जाए, क्योंकि फिर बीच बीच में मैं क्या बोल रहा होता हूँ एंड देन आई गेट डिस्टर्ब, क्योंकि फॉर सम रीजन। तो इसलिए मैं ऐसे, तो आई गिव यू पासवर्ड, यू एंटर द पासवर्ड इन योर डायरेक्टली, ठीक है? तो दैट वे विल सी। तो मैं एक आपको लॉगिन जूम का लॉगिन आईडी दे दूंगा, या फिर एक नंबर होता है उनका, एंड देन आई आल्सो गिव यू पासवर्ड। सो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें ये डिस्कस करना है गाइस कि हमें ना डेली स्क्रम मीटिंग रखना होगा। डेली स्क्रम मीटिंग जो कि 2-3 दिनों के बाद से होगा। एंड डेली स्क्रम में क्या होगा कि यू गाइस ओनली विल बी अलाउड टू से, बिल्कुल इनफॉर्मल होके आना, ठीक है? बिकॉज हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड कोड फॉलो करेंगे एजाइल स्क्रम का। एजाइल स्क्रम में क्या होता है, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल मीटिंग, ठीक है? उसमें ये नहीं कि आप लेट कर आराम से बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल मतलब कि वहां पे आके आप अपने बारे में बताएंगे नहीं, हेलो सर, हाउ आर यू सर, नो नो, नथिंग लाइक दैट। आप सीधा सीधा आएंगे, यू गाइस विल से कि आपने आज क्या किया है, आपने कल क्या किया था, आज का आपका क्या प्लान है, और आप कहीं अगर कोई अड़चने, कोई बॉटलनेक्स अगर आप आ रहे हैं तो वो क्या है, ठीक है? तो उसके बाद फाइनली आई विल बी देयर इन द रूम, सम मेंटर भी रहेगा, जिसको अगर परेशानी आ रही है तो दैट पर्सन कैन स्टॉप, अदर पीपल कैन एक्चुअली लीव। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए होगा ये, ठीक है? आई विल बी देयर फॉर हाफ एन आवर, सो दैट 1-to-1 बेसिस पे भी लास्ट में कुछ चीजों को रिजॉल्व कर सकें। दूसरा क्या है, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक कोलैबोरा करके होता है ना, कुछ कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह, या आईटी के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे गूगल प्रोवाइड करता है या फिर अदर एजेंसीज, गिटहब वगैरह हो गया, उन सब चीजों में। तो आई विल फाइंड समथिंग लाइक दैट वेयर इन एवरीवन कैन एक्चुअली हैव द वेरी सेम एनवायरनमेंट टू प्रोग्राम। जैसे कि मान लो इफ अभिषेक इज वर्किंग ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज applicant tracking system, and if Shubh is working on something called as a performance management system। अभिषेक ने बोल के रखा है कि एम्प्लॉयज को हमने कोड दिया पी, तो मैं नहीं चाहता कि शुभ उनको एस दे, ठीक है? क्योंकि पी को एस मिलाने में फिर बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि देयर शुड बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर इन एवरीवन कैन एक्चुअली शेयर कोड एंड देन दे कैन एक्चुअली वर्क इंडिविजुअली, सो दैट ओवरऑल एक कोड और प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है? तो that's how we'll do। तो मैं आपको I'll keep talking to you about all these things। व्हाट्सएप ग्रुप पहले बन जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को थोड़ा ऑफिशियल रखेंगे गाइस, ठीक है? फालतू के जोक्स वगैरह हो तो वो भरने लगते हैं, डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। लेट्स हैव अ वेरी फॉर्मल ऑफिशियल ग्रुप, लेट्स बिहेव as if we are working in an industry, because we are। ज्यादा नाटक करोगे तो निकाल के फेंक भी देंगे, ठीक है? टेक दैट एज अ वार्निंग। तो लेट्स स्टिक टू और मेंटेन द डेकोरम, और उस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? नो जोक्स, फालतू फालतू कुछ भी नहीं। ओके गाइस, आई Sir, कॉल can I speak? किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। आई विल स्टे हियर Sir, इन द मीटिंग रूम फॉर टिल 9:37, ठीक है? sir, am I audible? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। आशीष, Sir, there is a app called Discord. We can make that what you are saying, keep sharing with each other, and we can collaborate on that also. We can make server, individual server, where we can create room for each one. Like there is a voice channel we can join in, and similar people who wants to do similar kind of stuff and want to collaborate, that they can do that. ओके, It's a good software. ऑलराइट। आशीष, तो हैव यू यूज्ड इट अर्लियर? आपको पता है अच्छे से उसकी फंक्शनैलिटीज वगैरह? मतलब कैन यू गाइड मी? Yes, sir. Yes, sir. I can show you right now on my sharing my screen. ओके, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, आशीष आप मेरे को बताना शुरू करना एग्जैक्टली 4 मिनट के बाद। टिल दैट टाइम लेट्स सी इफ समवन एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन, डाउट्स, एनीथिंग, एनी कमेंट्स, एनीथिंग। किसी के पास है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है? So right now guys, I have ended the session, ठीक है, at this moment। So you guys, if you want, you can leave। बाकी मैं I would advise you to stick here, क्योंकि आशीष is gonna show us the way to work around, ठीक है? Okay आशीष, you may start now। Let me give you the rights to share screen। Yes।
आशीष, you are muted. I think आप mute हैं. आप अपने आप को unmute कीजिए because so far we haven't, no one has heard anything. Please unmute yourself. Yes, Yes, sir. Ashish, a general advice to everyone, हाँ, audible. guys, while you are sharing your screen, ensure that आपका कुछ ऐसा secret या कुछ ऐसा कुछ होना सामने, ठीक है? Because there are two things. Number one is that this session is getting recorded as well, ठीक है? You remember that? And number two is that वो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है? मजाक बनेगा सबके Yes, बीच में, तो ensure that. Okay, yeah, Ashish. so this is my own server, sir. So which I had created for my project, and I have added people over here. Like there are only three people right now. So like there is this channel where people do machine learning stuff and deep learning stuff. So if I want to get news from this channel to my channel, I have to just do means I have to get those news by using like I have to subscribe to this server, and I will get all those news and this. So it's easy to create this server, and we can stick like there is a voice channel over here which I can join, and I can do voice chatting with someone who wants to deal with something that is similar to me also and to him also. That's all, sir. Okay, so यहाँ पे the other good thing I can think of here is that since we can keep an office hour timing as well, right? Because ऐसा नहीं होगा ना कि Yes, sir. आप रात को काम कर रहे हैं, कोई दिन में काम कर रहा है, और रात को काम करने वाला अगर अटक गया तो वो रात को कॉल करके फोन कर रहा है अपने दोस्त को कि प्लीज बता दे यार मैं यहाँ अटका हूँ. ठीक है, तो all those No, sir. So I was learning this. So one of the guy who was chatting over here, he said the at the rate everyone. So the notification went to everyone, and the at the rate here the notification to went to those people who were present with them, means Right. At online. that point. Okay. Yes, sir. All right. Okay. It's a good thing, sir. ठीक है, हाँ, I'll do some background research as well, ठीक है. Meanwhile अगर किसी और के पास भी कोई इसी तरह का प्लेटफॉर्म वगैरह है, who someone thinks if that's better than the one shown right now over here, तो वो भी बता सकता है, because we need at least, हमें हमारे पास अभी 1 से 2 दिन और हैं. I mean we can say that अभी 2 और क्लासेस के बाद ही you will actually start to code, ठीक है. बैकग्राउंड एक्टिविटी एक दिन करना पड़ेगा, that is day after tomorrow I think. उसके बाद ही हम शुरू करने वाले हैं, तो we have more time for that. और एक और काम करेंगे गाइस कि you will have to finalize एक टाइम स्लॉट जिसमें सब लोग एक साथ काम कर रहे हों, ठीक है, so that it looks as if you are working for an office. अगर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो भी it should be like कि ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, अदरवाइज फिर क्या ही फायदा. तो उसके लिए will make a time schedule जिसमें आप लोग को काम करना होगा. उससे क्या होगा कि if suppose आशीष अगर at the rate someone या everyone ऐसे डाल के if he comments on to something, तो आप लोगों को पता चलेगा, and then you can directly jump in कि हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ and this is where I am, all those things, right? तो रात को एक आशीष बैठ के करेगा आप, तो it doesn't make sense. तो इसलिए for that we'll make some good practices, उसके लिए हम ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है. Anything else guys? Anything else? Hello. So I'll do one more thing. So you guys are free to leave now. किसी को अगर 1-to-1 if someone wants to talk to me anything, I'll be here थोड़ी देर और, ठीक है, before I close the meeting. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Sir,
Yes, Abhishek. Actually हम official mates को Zoom पर रखें तो better रहेगा, because I have some issues with Discord, because as I have told you that I am from Himachal, so there might be some network issues, and with Discord it is a bit tough task, Okay, because what is it that Discord demands a very, sir? What is it that you're suggesting, Abhishek? आपने क्या suggest किया? मैं starting में सुन नहीं Sir, पाया. I just want that I just want to suggest that we should do our official meets on Zoom or Google Meet or whatsoever, but not on Discord, Okay. because I don't have that much good experience with Discord. Okay. ठीक है. We'll take that into consideration as well. Yes. Yes. Sure. Yes. Either for codes, we can use GitHub. Like, Sorry, Shikha. we can pull in. Yeah, either for sharing codes, not for chats and like connecting each other, Yes, but sir. just for you can use Git Bash instead, and also Google Collaboratory, so that might work. Right. Sure. Yes. That was one of the ideas which I was having. So Google Collab was one of the things wherein हम उसमें कुछ काम Yeah, आते हैं, right? simple. Hmm. Easy. ठीक है, तो we can use that as well. अभी explore करते हैं, guys. You look into all those things. ठीक है, आप लोग देखिए, क्योंकि आपका project team है, right? This HRMS IT for HRMS is your project team. So you guys have to decide कि आपको best productivity के लिए आपको क्या choose करना है और कैसे काम करना है. That's all up to you. ठीक है? I will not say anything. Sure. I'll not stop. I'll just be a medium provider for things. Yes. Sure, sir. Thank you. Thank you, sir. Welcome, Abhishek. Ashish, you entered again. Is there a specific reason for that? No, sir. I was wondering, you said that before leaving that I want to conclude something, so I joined again. You want to conclude something. No, I think you must have misunderstood. So I said that I will be here for some more time, so that if there's someone who has some personal concern or who wants to talk one-on-one with me, that person can stay, can leave. Okay, sir. We can leave now, sir. Yeah. You are all free to leave now. Okay, thank you, sir. Welcome. Good night, sir. Good night.